Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مفتاح العربیہ الجزء الاول کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ یہ کتاب دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز استاد حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب دامت برکاتہم نے تالیف فرمائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ میرے لیے اور آپ سبھی حضرات کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جب بھی آپ عربی زبان کے متعلق کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو عام طور پہ جو پہلا درس ہوتا ہے، پہلا سبق، تو اس میں ھذا، ھذہ، ذالک اور تلک اس طرح کے الفاظ آپ کو اکثر اور بیشتر ملیں گے۔ ھذا اور ھذہ یہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ذالک، تلک یہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ البتہ ھذا مذکر کے لیے، ھذہ مؤنث کے لیے، ذالک مذکر کے لیے اور تلک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فمعنى ذلك اليوم نتعلم 4 کلمات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم 4 کلمات پڑھیں گے۔ نمبر 1 ھذا، ھذہ، الثالثہ، تیسرا کیا ہے؟ ذالک، والرابعۃ تلک، یہ 4 کلمات ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے، ھذا مذکر کے لیے، ھذہ مؤنث کے لیے، ذالک مذکر کے لیے اور تلک مؤنث کے لیے۔ یہ تقریباً ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے، ھذا مذکر کے لیے ہوتا ہے اور ھذہ مؤنث کے لیے، تقریباً ہر کسی کو، چاہے وہ عربی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، تقریباً اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مذکر اور مؤنث کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ فَكَيْفَ نَعْرِفُ التَّذْكِيرَ وَالتَّأْنِيثَ، اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو مصنف نے بہت ہی آسان الفاظ کے اندر سمجھایا ہے کہ مذکر کو ہم کیسے پہچانیں گے اور مؤنث کو ہم کیسے پہچانیں گے۔ اس کی ایک عام پہچان، عام شناخت یہ ہے، ہمیشہ نہیں، اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے، جب بھی کسی اسم کے آخر میں گولتا ہو تو وہ عام طور پہ مؤنث ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا۔ کہ بعض جگہ ایسا بھی ہے کہ ان کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ تا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مذکر ہیں۔ تو یاد رکھیں، عام طور پہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں تا ہو گولتا، جیسے آئے گا بھی محبراتن، مدرساتن، دواتن، تو یہ مؤنث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے آخر میں تا کا استعمال ہوا ہے۔ لہذا جن کے آخر میں تا کا استعمال ہوا ہے تو ان کے لیے ھذہ اور تلک کا استعمال کریں گے، اور جو ان کے علاوہ ہے تو وہ مذکر ہے تو ان کے لیے ھذا اور ذالک کا استعمال کریں گے۔ فہم؟ تمام اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، مجھے امید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول، ھذا قلم، یہ قلم ہے، ھذہ دوات، یہ ایک دوات ہے،
ذالika किताबुन, वो एक किताब है। तिलका मदरसातुन, वो एक मदरसा है। आप देखें हादिही और तिलका, इन दो कलिमों का वहां पे इस्तेमाल हुआ है जहां आखिर में ता है, और हादा और जालिका वहां इस्तेमाल हुआ है जहां उनके आखिर में ता नहीं है। हादा मकतबुन, ये एक टेबल है। हादिही सबूरतुन, ये एक ब्लैक बोर्ड है। ज़ालिका दफ्तरुन, वो एक कॉपी है। तिलका मिहबरतुन, वो एक दवात है। ला फर्का बैन दवात वल मिहबरा, दवात और मिहबरा में फ़र्क नहीं है। दवात वल मिहबरा सवा, मिहबरा और दवात ये दोनों बराबर है, अलग अलग नहीं है। जो बोतल होती है, बोतल विआउल हिब्र, जिसके अंदर स्याही रखी जाती है, उसको मिहबरतन भी बोलते हैं व दवातुन ऐज़न दवात भी बोलते हैं। और जो रोशनाई होती है जिससे लिखा जाता है, उसको हिब्रुन कहा जाता है। ज़ालिका दफ्तरुन, वो एक कापी है। तिलका मिहबरतुन, वो एक दवात है। हादा शुब्बाकुन, ये एक रोशनदान है। हादिही नाफिज़तुन, ये एक खिड़की है। अलफर्क़ु बैन शुब्बाक व नाफिज़ा, शुब्बाक और नाफिज़ा खिड़की, इनमें फ़र्क ये है कि शुब्बाक रोशनदान को बोलते हैं, जो रोशनदान होता है छोटा कमरे में लगा हुआ, और नाफिज़तुन खिड़की। ज़ालिका बाबुन, वो एक दरवाज़ा है। तिलका मिमहातुन, वो एक रबड़ है। महा यमहु, इसके माने है मिटाना, उसी से बना है मिमहातुन, मिटाने का एक जरिया, आला, वो होता है रबड़। हाजा सालिमुन, ये सालिम है। हादिही आमिनतु, ये आमिना है। ज़ालिका नबीलुन, वो नबील है। तिलका फातिमतु, वो फातिमा है। ज़ालिका वरकुन, वो वरक है या पत्ता। तिलका हकीबतुन, वो बेग है। ज़ालिका तबशूरुन, वो चाक है। तिलका हदीक़तुन, वो एक बागीचा है। अब आपने समझ लिया यहाँ तक, आप ये बात अच्छी तरीके से जान गए कि अगर लफ्ज़ मुअन्नस यानी उसके आखिर में गोलता हो तो उसके लिए हादिही या तिल का इस्तेमाल करेंगे, और अगर मुज़क्कर हो तो उसके लिए हादा अव ज़ालिका नस्तख़दिमु, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ज़ालिका या हाजा इस्तेमाल करेंगे। अब देखें ये मश्क है। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है और कौन सा मुअन्नस, और जहां आपको लगे ये लफ्ज़ मुअन्नस है तो उसके शुरू में हादिही लाएंगे या तिल का, और जो लगे ये आपको मुज़क्कर है तो उसके लिए हादा और ज़ालिका। अब देखना, हादिही रूबियतुन, तिलका साअतुन। हादिही मकतबतुन, तिलका मदरसतुन। हादा रजुलुन, तिलका इमराअतुन। हादा तालिबुन। ज़ालिका तिलमीज़ुन। हादिही तिलमीज़तुन। तिलका तालिबतुन। हादा मुदर्रिसुन। ज़ालिका मुअल्लिमुन। हादिही मुदर्रिसतुन। तिलका मुअल्लिमतुन। हादा उस्तादुन। तिलका उस्तादतुन। हादा मुस्हफुन। ज़ालिका मंजिलुन। हादिही जामिअतुन। ज़ालिका साइकुन। हादा मतारुन। हादिही महत्ततुन। ज़ालिका मौक़िफ़ुन। तो जिस तरीके से मैंने इस तमरीन को मुकम्मल किया, आप भी इसी तरीके से देखें
जहाँ मुज़क्कर होगा तो वहाँ हादा या ज़ालिका, और अगर मुअन्नस हो तो फिर हादिही या तिल का इस्तेमाल करें। अरबी में तर्जुमा कीजिए, ये खेलगाह है। हादा मलअबुन, ये तफरीह गाह है। हादा मुंतज़हुन, वो रास्ता है। ज़ालिका तरीक़ुन, अब अरबी कैसे बनाएंगे? अब मसलन ये है, लफ्ज़ लिखा हुआ है वो रास्ता है, तो पहले आप वो की अरबी लाएं। ज़ालिका रास्ते की अरबी, तरीक़ुन दोनों को मिलाओ तो हो गया ज़ालिका तरीक़ुन, वो उस्ताद है। ज़ालिका उस्ताज़ुन, ये हस्पताल है। हाज़ा मुस्तशफ़ा, वो मतब है। ज़ालिका मुस्तौसफ़ुन, मतब क्लिनिक, ये दवाखाना है। हाज़िही सैदलियतुन, वो डॉक्टरनी है। तिलका तबीबतुन, ये रजिस्टर है। हाज़ा सिजिल्लुन, वो ड्राइवर है। ज़ालिका साइकुन। तो ये सबक मुकम्मल हो गया अल्लाह के फजलो करम से। तो ये सबक आसान भी है, थोड़ा सा तवज्जो की ज़रूरत है। आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो ये तमरीनें आई हैं, इन किताब से जो भी आप किताब पढ़ेंगे फ़ायदा तभी होगा जब आप इनकी जो मशक़ें हैं, जो तमरीनें हैं, उनको लिखने की हद से ज़्यादा कोशिश, जितना लिखेंगे, जितना बोलेंगे, जितना बुलंद आवाज़ के साथ बोलेंगे, बार बार इसमें प्रैक्टिस करेंगे, जितने इस पर मेहनत करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह इस सबक को याद भी करेंगे, इसको लिखेंगे भी और ज़बान से भी अदा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.